And welcome back to SK1 and we're back again with another topic of mine. And आज हम लोग जो बात करेंगे it will be about a very important principle. In fact एक ऐसा principle जिस पे पूरी की पूरी you will see quantum mechanics based है, and it is Heisenberg's uncertainty principle. When हम लोग particularly Heisenberg's uncertainty principle की बात करें, and by that I don't mean the generalized uncertainty principle. In fact the original uncertainty principle as of Heisenberg in 1927. तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो अनसर्टेनिटीज की बात हुई है, एक्चुअली इट इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड टर्म, एंड द रीजन इज कि यहाँ पे एज इट स्पीक्स ऑफ अनसर्टेनिटी कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो. सो द क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस स्टेटमेंट एक्चुअली मीन. Does it mean कि आप accuracy के साथ measure नहीं कर सकते? Well, that is one of the fundamental lines in it as given by the definition by Heisenberg himself. लेकिन what does it actually mean and ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते हो? Well, इसका एक आंसर हो सकता है कि मे बी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप यूज कर रहे हो उन्हें मेजर करने के लिए उतने प्रिसाइज नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स उतने एक्यूरेटली स्केल्ड नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हो. Well, there may be some other reasons, some classical reasons, some quantum mechanical reason. लेकिन most of the reasons जो कि हम लोग सोचते हैं जिसकी वजह से ये uncertainty principle valid है is actually incorrect. And we many times think so कि ऐसा एक reason हो सकता है due to which this principle is valid, but we are often incorrect about it. And some interpretations of it to be speaking, जैसे अगर मैंने मान लिया कि the uncertainty principle as of its mathematical language, so here you have the uncertainty in x times the uncertainty in momentum, that is position, and momentum is always greater than or equal to the reduced Planck's constant half. तो यहाँ पे ये जो reduced Planck's constant है that is h over 2 pi, that is the reduced Planck's constant, that is h bar, इसका half. ये जो आपका टर्म है हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट हमेशा इस टर्म से या तो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, मतलब ये इस टर्म से कभी छोटा नहीं होगा. वेल हाउ डज दिस थिंग एक्चुअली कम इनटू प्ले, कि ऐसा क्यों होता है? द थिंग इज कि हाइजेनबर्ग ने इसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट दी थी, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया था, which is in fact a very common misconception among people to be the true reason why uncertainty principle holds, and this is indeed incorrect. कि ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी आप पोजीशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन व्हाट यू डू इज कि पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट ऑब्जर्व इट. आप इसे ऑब्जर्व कैसे करोगे? बाय शाइनिंग लाइट अपन इट. जब आप इस पे लाइट शाइन करते हो सो यू कैन क्लियरली सी कि तब आप इसकी पोजीशन मेजर कर सकते हो. व्हेन यू शाइन लाइट एट इट and the photons strike the particle, when the photon strikes it and gets reflected back, tab depending on how which particle or maybe which photon the strikes that particle right over that, so basically wo photon reflect hoga, it comes right into your eyes, those photons come into your eyes and you can see the particle, or you can observe and do measurements on the particle and calculate its position. लेकिन क्या आप ऐसे इसके मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो? Well, what Heisenberg told us was something like this कि अगर मुझे accurately, precisely इसकी position को calculate करना है, well then I certainly need a high energy light over here to precisely calculate the position of the particle. तो अगर मैं एक high energy light को यहाँ पे consider करता हूँ जिससे मैं precisely इसकी position calculate कर सकता हूँ, well in that particular case what I say is कि ये हाई एनर्जी सर्टेनली उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा. सो इवन दो आई हैव कैलकुलेटेड द पोजीशन, आई गॉट एन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी इसमें क्लियरली ट्रांसफर होगी एंड इट डिस्टर्ब्स द पार्टिकल, सो प्रोड्यूसिंग एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. अगर मैंने इंस्टेड एक लो इंटेंसिटी एक लो एनर्जी वाली लाइट को यूज किया होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया होता है ऑन दिस पार्टिकल एंड रिफ्लेक्ट इट ऑफ द पार्टिकल, तो इवन दो अब मैंने इसे कम डिस्टर्ब किया, बट नाउ आई कैन नॉट नो वेयर द पार्टिकल इज प्रिसाइजली. सो देयर यू हैव दैट इफ यू नो द पोजीशन वेरी एक्यूरेटली, यू डोंट नो द मोमेंटम दैट एक्यूरेटली, एंड यहाँ पे अनसर्टेनिटीज होती हैं, इनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ सर्टेन नंबर, बट दैट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग. एंड नाउ बिलीव मी कि इवन दो द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने खुद दिया था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट,
एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ही इंटरप्रिटेशन हाइजेनबर्ग ने खुद गलत दिया था. Well, in actually a letter, Heisenberg told this to Pauli, I suppose, and later it was published as in a journal. लेकिन नील्स बोर ने इसमें एरर्स पॉइंट आउट किया एंड व्हाट द एक्चुअल एरर इज एंड हाउ इट इज अंडरस्टूड नाउ. पहली चीज आप समझ लो कि ये गलत क्यों है. ये हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है ऑन व्हाई देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑकरिंग इन पोजीशन एंड मोमेंटम, व्हाई देयर आर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, ये गलत क्यों है. तो पहली चीज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास एक कोई भी पार्टिकल होता है which is clearly a quantum particle as I'm supposing, not a classical particle जो कि हमारे classical laws को obey करता है. In fact, everything that you see around yourself, it is made up of quantum particles that are continuously interacting with each other and even exerting forces on each other. Like you have an electron, clearly दूसरे electron के साथ interact करेगा and it interacts with proton by electromagnetic force or whatever. But it is a quantum particle. So you have any quantum particle, तो कभी भी बिफोर द मेजरमेंट, इनफैक्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल जहां पे आपको मेजरमेंट नहीं करना है. सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट बिफोर द मेजरमेंट. मे बी लेटर वी हैव दिस कंसेप्ट कि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं दिस हैपेंस एंड दैट हैपेंस, बट इफ यू डोंट मेक अ मेजरमेंट तब ये पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट में होगा. एंड हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस क्वांटम स्टेट? You use the wave function to describe this quantum state. Well, what the wave function will won't get into very complicated mathematics and use this and that kind of term to explain what is actually happening, but in the simplest way possible I'll try to explain it such कि कोई भी आपके पास quantum particle होता है वो हमेशा एक superposition of states में होता है. And what I mean by that is कि मान लीजिए आपके पास एक box है जिसमें quantum particle है, so it is very much like a particle in a box situation. तो अगर मुझे इस पार्टिकल को अंडरस्टैंड करना है, इसके मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करना है और हाउ इट बिहेव्स इसे अंडरस्टैंड करना है, सो आई कैन वेरी वेल से कि ये जो पार्टिकल है इसके प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इतनी है कि ये यहाँ पे फाउंड होगा, ये यहाँ पे भी हो सकता है, सो आई कैन असाइन सर्टेन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इट. ये यहाँ पे भी फाइंड मैं इसे कर सकता हूँ, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आई फाइंड इट ओवर हियर. There's the probability I find it over here. There's the probability I found it over here. And एक particular region of space में मैं various probabilities at each and every point दे सकता हूँ कि what is the probability that I find this particle over here. So it is distributed as a probability web. That is a probability web. That is what this particle is. तो indeed यहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स को नहीं देख रहे हैं. इंस्टेड वी आर मोर गोइंग बाय द as of not matter waves but probability waves. That is what we have been talking about over here. Now, तो अगर इसकी probabilities हैं कि it is over here and over here and over here, तो certainly मैं मान सकता हूं कि these are all the positions the particle can be, of course, क्योंकि हम लोग exactly नहीं बता रहे where it is, we are assigning the probabilities to it at various positions in this particular box or this particular region of space जहां पे हमें पता है कि पार्टिकल है. लेकिन ये कहाँ पे है हमें तब तक नहीं पता चल सकता जब तक हम लोग मेजरमेंट करेंगे नहीं. As in quantum mechanics, because in quantum mechanics you know the wave function collapses and all these ambiguities happen. So what I can say is that maybe the particle is spread out as a probability wave and not a matter wave over here what I'm considering, but it is spread out in this entire region of space as a probability wave. तो ये particle यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, and इस पूरे region of space में है, and इस पूरे region of space में है such that कि जब मैं एक मेजरमेंट करता हूँ ये पूरा वेव कॉन्ट्रैक्ट करता है, अंडरस्टैंड इट दैट वे, और व्हाट यू कॉल वेव फंक्शन कोलैप्स करता है एंड ये पार्टिकल एक डेफिनेट पोजीशन एस्यूम करता है. सो जिस पूरे रीजन में ये पार्टिकल स्प्रेड है एज अ प्रोबेबिलिटी वेव, उस पूरे रीजन में ये पार्टिकल कहीं भी अपनी पोजीशन एस्यूम कर लेता है जब हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं. दिस इज व्हेन वी डू अ मेजरमेंट, जब हम लोग एक मेजरमेंट एक्चुअली करते हैं. अगर मेजरमेंट नहीं करते हैं तो ये पार्टिकल एक प्रोबेबिलिटी वेव ही है. दैट इज व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग राइट हियर. सो यू डोंट मेक अ मेजरमेंट, यू हैव अ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स. एंड व्हाट आई मीन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स इज कि इट इज इन मेनी स्टेट्स एट द सेम टाइम और मोर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टेट्स एट द सेम टाइम. एंड सिंस एक प्रोबेबिलिटी वेव है जस्ट नाउ, सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर
for this probability where it has so many positions at the same time with different probabilities for a particular position maybe. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटीज की बात करेंगे कि मोमेंटम की बात करें which is just mass times velocity. We are not even considering special relativity yet, so that would be the relativistic mass times velocity. It is just non-relativistic quantum mechanics. तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम होगा which is definitely proportional to the velocity is also in a superposition state or in a superposition of states. तो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे इसके पास एक साथ कई सारे पोजीशंस है, इट इज स्प्रेड आउट लाइक अ प्रोबेबिलिटी वेव, इसके पास एक साथ कई सारी मोमेंटम्स भी हैं. सो द वेरी सेम पार्टिकल कन्फाइंड इनसाइड अ बॉक्स, आपको पता चलता है कि इसके पास एक साथ कई सारी पोजीशंस हैं एंड इसके पास एक साथ कई सारी मोमेंटम्स भी हैं. एंड व्हेन आई मेक अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, जब मैं एक मेजरमेंट करता हूँ इन सारी पोजीशन या फिर इन सारी वैल्यूज ऑफ पोजीशन में, वेयर इट इज मोस्ट लाइकली टू लीस्ट लाइकली पोजीशन, मुझे एक डेफिनेट पोजीशन मिलती है. दैट इज व्हाट आई गेट. एंड व्हेन आई मेक दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेजरमेंट फॉर मोमेंटम, तो एक तो मैंने पोजीशन के लिए किया, मैंने ऑल्सो मेक दिस मेजरमेंट फॉर मोमेंटम, तो मुझे इन सारी रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ मोमेंटम में से फ्रॉम मोस्ट लाइकली टू लीस्ट लाइकली मुझे एक मोमेंटम भी मिलती है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज दिस अनसर्टेनिटी दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. दिस अनसर्टेनिटी एज ऑफ, अगर मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज ऑफ पोजीशन है जो कि मुझे मिल सकती हैं अगर मैंने मेजरमेंट किया, क्योंकि एवरी टाइम विल ट्राई अ मेजरमेंट वी माइट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, एक्सेप्ट फॉर द केस कि मैंने एक मेजरमेंट करने के बाद तुरंत दूसरी मेजरमेंट कर लिया, तो वह फंक्शन ने कोलैप्स किया, भी कोलैप्स किया हुआ ही है. सो यहाँ पे मुझे इतनी सारी वैल्यूज ऑफ पोजीशन मिल सकती है. अगर मुझे ये वैल्यू ऑफ पोजीशन ओवर हियर मिली, तब यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी है. व्हाट इज दैट अनसर्टेनिटी? दिस अनसर्टेनिटी दैट वी स्पीक ऑफ इजंट अनसर्टेनिटी एज ऑफ कि हमारे पास इतनी वैल्यू गलत मिली और समथिंग लाइक दैट. नो, दिस इज नॉट समथिंग इनकरेक्ट, नॉट दैट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी. This is actually a loose term right here. The more correct term would be the standard deviation, and here is where probability and statistics come into play. Well, the thing is कि यहाँ पे जो हम लोग uncertainty की बात करें, it is actually the standard deviation of position and the standard deviation of momentum. And what I mean by that is कि अगर आपने expectation values, that is, and what is expectation value? In the most simple term, it is just the average value. The standard deviation of any term is actually the square root of its variance. अब variance क्या होता है? Well, variance to be very specific, आप standard deviation का basically मान सकते हो square है. So we are going in a cyclic thing, of course. So let me just explain standard deviation. कि मान लो आपने average value of a quantity को calculate किया, फिर उस average value का square कर दिया, एंड फिर आपने सेपरेटली उसी क्वांटिटी का पहले स्क्वायर करके एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया. इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करते हो एंड देन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट डिफरेंस, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो यू हैव पोजीशन फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एवरेज वैल्यूज को ऑफन यू कॉल एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, द अंडर रूट ऑफ दिस टर्म इज the standard deviation of position. And whenever we speak of uncertainty as of the uncertainty principle, we actually mean the standard deviation, not something like this कि मेरी वैल्यू इतनी ऑफ है from the actual value, तो यहाँ पे कोई actual value है नहीं. And why is it that we are talking about the standard deviation? You must understand from the physical interpretation कि आपके पास एक range of values है, and since you are having a range of values, तो मुझे बताना, आई नीड टू टेल यू कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ वैल्यूज है इसमें से एक वैल्यू है. सो व्हाट इज द वेरिएंस? इट इज बेसिकली टेलिंग यू समथिंग लाइक हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम ऑल द अदर वैल्यूज, और अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ इट, ऑफ कोर्स, बिकॉज हाउ लाइकली इट इज टू बी फाउंड ओवर हियर, it might be more likely to be found over here and it might be less likely to be found over here. तो यहाँ पे इसके वेट, इसकी प्रोबेबिलिटी के वेट के अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेटली इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन असाइन करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस थिंग. सो दैट इज व्हाट दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज अबाउट. तो व्हाट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअली टेल्स अस इज कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन पोजीशन की होती है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मोमेंटम की होती है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट हाल्व्ड. सो अगर आपने
इन स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट किया फॉर वॉट एवर क्वांटम स्टेट, वॉट एवर क्वांटम प्रॉब्लम, ये हमेशा रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट के हाफ से या तो ग्रेटर होगी या फिर लेस इक्वल होगी. And you might see lots of other interpretations like the previous one, lots of other ways to tell you what it means, like how Heisenberg originally told कि यहाँ पे disturbance की वजह से you are disturbing the quantum particle by the intensity of your light or whatever. That is not correct क्योंकि that is nothing quantum, that is a completely classical thing, and classical physics won't get you anywhere around the Heisenberg's uncertainty principles through interpretation. So that is completely like a classical case. You might hear various other kinds of interpretations about it, but no, that is not correct. What it truly means is कि आपके पास जो सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पे जो एज अ प्रोबेबिलिटी वेव इट इज इंडीड स्प्रेड, तो यहाँ पे इट इज हैविंग ऑल दीज पोजिशंस एट वंस एंड ऑल दीज स्पीड्स एट वंस, since it is assuming a particular value of position and particular value of momentum upon measurement. So the standard deviations that it has to these values of position and momentum, the product of the two standard deviations are always greater than or equal to this certain number. So that is what the uncertainty principle truly means, and that is what it truly means to say कि आप कभी भी एक साथ position and momentum calculate नहीं कर सकते with that level of accuracy. That is what it truly means. So that is what this thing actually means, क्योंकि quantum mechanics में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि often misunderstood concept है. Now when I explained you what it truly means, and अगर मुझे explain करना हो कि why does it behave that way, तो in the end I would say it is one of the properties of matter being as wave, that is matter waves की ही property है. So what I mean by that is कि मान लीजिए आपके पास एक particle है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसे हम लोग एज अ वेव पैकेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यू बेसिकली हैव इट एज अ वेव. तो एक वेव है, इसके अंदर it certainly has an envelope to it, and it travels as an envelope with all these little waves that are oscillating inside of this wave packet, inside of the envelope of the wave packet. So this is a particle in quantum mechanics. तो इसे एज अ मैटर वेव हम लोग ऑफन कंसिडर करते हैं. कोई पार्टिकल है, उसे एज अ वेव उससे एसोसिएटेड एक काइंड का वेव होता है. नाउ द थिंग इज कि ऐसा ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि अनसर्टेनिटीज या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें बेसिकली कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं कि इस वैल्यू से ग्रेटर होगी या फिर इस वैल्यू से कम होगी. ये कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं कुछ इस रीजन से मिलते हैं कि अगर आपके पास एक वेव होता और मैं आपसे उस वेव की पोजिशन पूछता, सो इट इज स्प्रेड आउट इन स्पेस ओवर दिस रीजन, एंड मुझे जानना है कि ये वेव कहाँ पे है. So the question makes no sense at all. It doesn't make any sense to ask कि ये वेव कहाँ पे है at any instant of time, क्योंकि it is spread out over this region. Instead अगर मैंने आपसे पूछा कि ये वेव की मोमेंटम क्या है, so it certainly carries some energy and it certainly carries some momentum. So this question indeed does make sense कि इस वेव की मोमेंटम क्या है. तो मैं इसकी मोमेंटम एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट पोजिशन नहीं. Now, if it were contracted and ये बहुत ही छोटा होता, then in this particular case, of course, the question that where is this particle located, or maybe this wave even located. तो अगर मैं बहुत दूर से देखूं and it just looks like a point to me, then the question does make sense and I can draw whatever Cartesian coordinate system and tell you कि ये कहाँ पे located है. So I can tell you the position in this case. In the previous case, I can't tell you the position. I can only tell you the momentum of the wave. So similarly आप देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे हर एक पीस ऑफ मैटर, हर एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है. सिंस ये एक वेव से एसोसिएटेड है, उससे एक एसोसिएटेड एक वेव है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस अनसर्टेनिटी और व्हाई दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस फैक्टर थिंग इवन एग्जिस्ट एट ऑल. इट इज जस्ट एसोसिएटेड विद दिस थिंग, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कोई भी पार्टिकल कहाँ पे या फिर कोई भी पार्टिकल कहाँ पे होना चाहिए, वेदर यू आर टेकिंग द मेजरमेंट और वेदर यू आर नॉट टेकिंग द मेजरमेंट, अ वेरी रियलिस्ट पोजीशन टू दिस थिंग, या फिर इसकी मोमेंटम क्या होगी, क्योंकि इट इज basically a wave that you are trying to describe, a particle that has a certain envelope जिसके अंदर हमारे wave के you see there are sinusoidal waves inside the envelope, and ये जो envelope है ये खुद एक wave की packet है, that itself is a wave packet. So the way it makes no sense to actually ask कि ये wave कहाँ पे located है when it is across this region of space. So it also doesn't make any sense to ask the exact one single value of the position, and that is why हम लोग कहते हैं
कि इट इज स्प्रेड एज अ प्रोबेबिलिटी वेव। अब इसी प्रोबेबिलिटी वेव को आप एक मैटर वेव भी इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड यू माइट से कि जैसे मैंने कहा था इट इज स्प्रेड लाइक अ प्रोबेबिलिटी वेव ओवर दिस रीजन ऑफ स्पेस, इट इज बेसिकली स्प्रेड एज वेल लाइक अ मैटर वेव। तो ये एज अ मैटर वेव ओवर दिस रीजन ऑफ स्पेस स्प्रेड है। सो यू व्हेन यू ट्राई टू वेव इट, वेव फंक्शन कोलैप्सेस एंड ये सडनली हमें एक एज अ पार्टिकल दिखता है। व्हेन इट इज वेव्ड एज अ पार्टिकल, तो जो ये वेव था, ये वेव जितनी पोजीशन, जितनी स्पेस में स्प्रेड थी, उस पूरी पोजीशन में से कहीं की एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ पोजीशन कंसिडर कर लेता है एंड वॉट एवर वैल्यू ऑफ मोमेंटम दैट इज। सो दिस इज व्हाई द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल actually exists on a from a very physical basis. इसकी mathematics देखें so it can as well be derived from the generalized uncertainty principle. So that is how you do it and that is what it truly means. It is not something that you are disturbing it or you are not disturbing it and you are not able to measure it or able to measure that. So that was all for today's video of mine and thanks to all of us.